کرتے ہیں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ پاک بحریہ کے جہاز ذوالفقار نے بحر عرب میں کورین نیوی کے جہاز ونگ جیون کے ساتھ مشترکہ مشق کی۔ ISPR کے مطابق دونوں جہاز کمبائنڈ میری ٹائم فورسز کے ساتھ بالترتیب کمبائنڈ ٹاسک فورس 150 اور 151 کے تحت آپریٹ کر رہے تھے۔ مشق میں آپریشنل حکمت عملی اور مواصلاتی مشقیں شامل تھیں، جن کا مقصد مشترکہ آپریشنز کی صلاحیت کو بڑھانا اور دونوں بحری افواج کے درمیان پیشہ ورانہ روابط کو فروغ دینا تھا۔ کمبائنڈ ٹاسک فورس غیر قانونی سمندری سرگرمیوں، منشیات کی اسمگلنگ اور بحری قزاقی کو روکنے کے لیے میری ٹائم سیکورٹی آپریشنز کرتی ہیں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے چین کے سینٹرل ملٹری کمیشن کے وائس چیئرمین نے ملاقات کی، جس دوران باہمی اعتماد اور تعاون کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ جنرل عاصم منیر نے بین الاقوامی اور علاقائی ماحول میں تبدیلیوں کے باوجود پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونے پر چینی قیادت کا شکریہ ادا کیا۔ تفصیلات دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے چین کے سینٹرل ملٹری کمیشن کے وفد نے بھی ملاقات کی، جس دوران باہمی اعتماد اور تعاون کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ جنرل عاصم منیر نے بین الاقوامی اور علاقائی ماحول میں تبدیلیوں کے باوجود پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونے پر چینی قیادت کا شکریہ ادا کیا۔ ISPR کے مطابق چینی جنرل ژانگ یوشیا کو GHQ آمد پر پاک فوج کے چاکو چوبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ انہوں نے یادگار شہداء پر پھول رکھے اور خراج عقیدت پیش کیا۔ چین کے عسکری قیادت سے ملاقات میں آرمی چیف نے کہا کہ پاک چین تاریخی دوستی نے ہر مشکل وقت کا مقابلہ کیا ہے۔ یہ تاریخی شراکت داری مزید بڑھنے کے لیے تیار ہے۔ ISPR کے مطابق جنرل ژانگ یوشیا نے اسٹریٹجک پارٹنرشپ سے متعلق پاکستان کی ثابت قدمی کی تعریف کی، جبکہ چینی سینٹرل ملٹری کمیشن نے انسداد دہشت گردی کی کوششوں میں پاک فوج کی پیشہ ورانہ مہارت کی تعریف بھی کی۔ ISPR کے مطابق جنرل ژانگ یوشیا نے پائیدار تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے چین کے عزم کا اعادہ بھی کیا۔ آپ کو بتائیں کہ بیلاروس کے صدر الیگزینڈر لوکاشینکو پاکستان کا 3 روزہ دورہ مکمل کر کے اپنے وطن روانہ ہو گئے۔ بدھ کو وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے بیلاروس کے صدر الیگزینڈر لوکاشینکو کو الوداع کیا۔ ان کے 3 روزہ دورے کا فوٹو البم بھی پیش کیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ طاہر نے بھی اس موقع پر موجود تھے۔ بیلاروسی صدر کے دورے کے دوران متعدد مفاہمتی یادداشتوں اور معاہدوں پر دستخط کیے گئے، جن سے دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی تعلقات میں اضافہ ہوگا۔ اسلام آباد میں پاکستان تحریک انصاف مظاہرین کے خلاف گرینڈ کریک ڈاؤن جاری ہے۔ 500 سے زائد مظاہرین کو گرفتار کر لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور اور بانی پاکستان تحریک انصاف کی اہلیہ بشرا بی بی خیبر پختونخوا پہنچ گئے۔ پاکستان تحریک انصاف مارچ میں شامل کنٹینرز بھی آگ کی نظر ہو گئے۔ پاکستان تحریک انصاف کے متعدد کارکنان کو گرفتار کر لیا گیا۔ حکومتی وزراء کا کہنا ہے کہ بشرا بی بی اور علی امین گنڈا پور ایک ہی گاڑی میں بیٹھ کر فرار ہوئے تھے، لیکن متعدد مظاہرین گرفتار ہو گئے۔ جناح ایونیو، 7th ایونیو سے مظاہرین گاڑیاں چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ ریڈ زون سمیت اسلام آباد کے تمام علاقوں سے مظاہرین غائب۔ انتظامیہ نے پورا کنٹرول سنبھال لیا۔ PTI کا پرتشدد احتجاج کے خلاف بڑے پیمانے پر گرفتاریوں اور اسلحہ برآمد کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ سیکورٹی ذرائع کے مطابق افغان شرپسندوں کے ملوث ہونے کے واضح شواہد ملے۔ PTI کے پرتشدد احتجاج کے دوران بڑے پیمانے پر شرپسندوں کو گرفتار کیا گیا، جس میں گزشتہ 7 دنوں میں گرفتار ہونے والے 610 شرپسندوں میں 37 افغان شرپسند بھی شامل ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پرتشدد مظاہرین سے 39 ہتھیار برآمد ہوئے، جن میں جدید اسلحہ بھی شامل ہے۔ ان پرتشدد مظاہروں کے دوران قانون نافذ کرنے والے اداروں کے 170 سے زائد اہلکار زخمی ہوئے۔ شرپسندوں کی جانب سے پولیس کی 22 گاڑیوں کو بری طرح نقصان پہنچایا گیا۔ سیکورٹی ذرائع کا مزید کہنا تھا کہ مظاہرین کی جانب سے ایک جیل وین کو آگ لگا دی گئی۔ پرتشدد مظاہروں کے دوران اسلام آباد سیف سٹی کے 22 ملین روپے کے 97 کیمروں کو نقصان پہنچا۔ پرتشدد مظاہرین کی جانب سے پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں پر سیدھی فائرنگ کی گئی۔
सिक्योरिटी ज़राए ने इस्लामाबाद में होने वाले एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन की अमवात की खबर झूठी और मनगढ़ंत करार दे दी। कहा कि सोशल मीडिया पर चंद लोगों की जानिब से एहतजाज के दौरान कानून नाफिज करने वाले इदारों की शेलिंग से कई मुजाहिरीन अमवात का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। मुजाहिरीन की अमवात की खबर झूठी और मनगढ़ंत है। सिक्योरिटी ज़राए का बताना है कि अपनी नाकामी और कोताहियों को छुपाने के लिए मनगढ़ंत प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। कल रात पुलिस और रेंजर्स ऑपरेशन में किसी किस्म के आतिशी असलहे का इस्तेमाल नहीं किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद एहतजाज खत्म करने का ऐलान कर दिया। तर्जुमान पीटीआई के मुताबिक बानी चेयरमैन से मुलाकात और कोर कमेटी की मीटिंग के बाद अगला लाहे अमल बताया जाएगा। तर्जुमान पीटीआई का कहना था कि पुरअमन मुजाहिरों पर इस्लामाबाद की सड़कों पर गोलियों की बारिश की गई और सैकड़ों निहत्थे पाकिस्तानियों को जख्मी करके खून में नहला दिया गया। डी चौक पहुंचने वाले कारकुनान और शहरियों को खिराज तहसीन पेश करते हैं। तर्जुमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मजीद कहना है कि पुरअमन एहतजाज के लिए मुल्क भर खुसूसन खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध और शुमाली पंजाब के अजला से आग और खून का दरिया अबूर करके मुकम्मल पुरअमन अंदाज में डी चौक पहुंचने वाले कारकुनान और शहरियों को खिराज तहसीन पेश करते हैं। दुनिया भर में बानी चेयरमैन की कॉल पर तारीखी एहतजाज करने वाले ओवरसीज पाकिस्तानियों के भी शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज खत्म होते ही पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी के साथ कारोबार का आगाज हुआ। 100 इंडेक्स के 4,695 से जायद पॉइंट्स के इजाफे के बाद 99,269 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज मंफी जोन में बंद होने वाली स्टॉक मार्केट में आज कारोबार के आगाज पर जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। मौशी तज्जियाकार का कहना था कि एहतजाज के खात्मे के साथ 100 इंडेक्स की गिरावट भी खत्म हो चुकी है। गुज़िश्ता रात अपोजिशन का एहतजाज खत्म होने पर स्टॉक एक्सचेंज ने बेहतरीन रिकवरी की है। और तहरीक इंसाफ की जानिब से एहतजाज खत्म करने के ऐलान के बाद मामूलाती जिंदगी बहाल हो गई। इस्लामाबाद और लाहौर में सड़कों पर रखे गए कंटेनर्स हटा दिए गए। तमाम सड़कें ट्रैफिक के लिए बहाल हो गई। तालीमी इदारे कल से खोलने का फैसला किया गया। मजीद जानिए इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद में शरपसंदों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन मुकम्मल। विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मामूलात जिंदगी बहाल हो गई। तालीमी इदारे कल से खुलेंगे। 3 रोज से जारी इंटरनेट सर्विस की बंदिश को भी खत्म कर दिया गया। इस्लामाबाद में ट्रैफिक की रवानी मामूल पर आ गई। पिंडी की सड़कों पर मौजूद कंटेनर्स भी हट गए। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक मोटरवे M2 को लाहौर इस्लामाबाद और मोटरवे M11 को लाहौर सियालकोट ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। मोटरवे M4 पिंडी भटिया अब्दुल हकीम, मोटरवे M14 हकला डेरा इस्माइल खान, मोटरवे M3 भी हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खुल गई। लाहौर में भी मामूलात जिंदगी मुकम्मल बहाल हो गई। लाहौर रिंग रोड भी हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खोल दिया। तर्जुमान लाहौर ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि शहर के तमाम दाखिली और खारजी रास्ते खुले हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि फसादी हथियार लेकर दारुल हुकूमत पर हमला आवर हुए, अल्हम्दुलिल्लाह फसाद का खात्मा कर दिया गया। इस्लामाबाद में वफाकी काबीना इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि हुकूमत बेलारूस से मुआहदा कर रही थी और फसादी हथियार लेकर दारुल हुकूमत पर हमला आवर थे। उनका मजीद कहना था कि कल इस्लामाबाद में जो फसाद बर्पा किया गया इसका मुल्क भर में मईशत को नुकसान पहुंचा है। इसका एहसन तरीके से खात्मा कर दिया गया। सिक्योरिटी इदारों ने शरपसंदों पर काबू पा लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मजीद कहना था कि 2014 से पहले इस्लामाबाद पर चढ़ाई का कोई तस्वुर तक नहीं था। इस्लामाबाद में तहरीक इंतशार ने फसाद बर्पा किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का एहतजाज के बाद पहला खिताब। कहते हैं कि धरना एक तहरीक है जो जारी है और बानी की कॉल तक जारी रहेगा। उन्होंने दावा किया कि हमारे धरनों में लोगों को गोलियां मारी गई, हमारे सिक्योरिटी लोग शहीद हुए और सैकड़ों को गोलियां लगी, हमारे हजारों कारकुनान गिरफ्तार किए गए। इस हवाले से देखिए ये रिपोर्ट। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है कि धरना एक तहरीक है जो जारी है और बानी की कॉल तक जारी रहेगा। मानसहरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अली अमीन गंडापुर ने कहा कि हमने इस्लामाबाद में एहतजाज के लिए पुरअमन कॉल दी। हम अपने जायज हुकूक की बात कर रहे हैं। हमारी पार्टी के साथ जबर किया गया है। हमें बानी पीटीआई ने डी चौक जाने की इजाजत दी। उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई ने कहा है कि जब वो कहेंगे तब धरना खत्म होगा,
तो ये बात याद रखें कि ये धरना अभी जारी है। ये धरना बानी के इख्तियार में है। हमारे धरने में लोगों को गोलियां मारी गई, हमारे सैकड़ों लोग शहीद हुए, हमारे हजारों कारकुन गिरफ्तार भी हुए। हमें अदालतों से इंसाफ नहीं मिल रहा। हमने इस्लामाबाद एहतजाज के लिए पुरअमन मार्च की कॉल दी, पुरअमन धरने पर गोलियां चलाई गई। हम पर तशद्दुद ना होता तो हमारे लोग भी जवाब न देते। अली अमीन का कहना था कि 2.5 साल से हमारी जमात को जुल्म जबर का निशाना बनाया जा रहा है। हमें अदालतों से भी इंसाफ नहीं मिल रहा। हमारा लीडर जेल में है और उसकी अहलिया को भी जेल में डाला गया। उन्होंने कहा कि मुझ पर 9 मई के दर्जनों मुकदमात हैं। कोई एक वीडियो दिखा दे जहां मैं मौजूद हूं। मुझ पर कातिलाना हमले की कोशिश की गई, मुझे अगवा करने की भी कोशिश हुई। जिस मुल्क के वजीर आला को इंसाफ न मिल सके तो आम आदमी की क्या औकात है। कौम पर गोलियां बरसाकर उन्हें गुलाम नहीं बनाया जा सकता। ये सूबा अपने हक और अपना मैंडेट लेना जानता है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने एहतजाज में शरीक होने वाले पार्टी कारकुनों को खराज तहसीन पेश करते हुए कारकुनों पर तशद्दुद की FIR अपनी मुद्दत में दर्ज कराने और शहीद होने वाले वर्कर्स के खानदानों के लिए फी कस 1 करोड़ रुपए का ऐलान किया। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहन अलीमा खान ने बुशरा बीबी पर सवालात उतार दिए। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर उनका कहना था कि शाम होते ही मरकजी कंटेनर्स का साउंड सिस्टम और लाइट्स क्यों बंद की गई। उन्होंने मजीद कहा कि साउंड सिस्टम और रोशनी ना होने के बायस मुकम्मल अंधेरे में आवाम को हिदायत जारी ना हो सकी, रहनुमाई फराहम भी नहीं की गई। अलीमा खान का मजीद कहना था कि हमने सारी शाम कंटेनर्स पर रोशनी और आवाज़ के चलाने की दरख्वास्त की, लेकिन हिदायत देने वाले लोगों की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी कहां है? सोशल मीडिया पर सवालात उठने लगे। जराए का कहना है कि बुशरा बीबी ताहाल मानसेरा में मौजूद हैं। वो बाबर सलीम सवाती की भांजी की रिहाइशगाह पर मौजूद हैं। बुशरा बीबी को आज पेशावर रवाना होना था। हेलीकॉप्टर की अदम दस्तयाबी के बायस बुशरा बीबी पेशावर न जा सकी। बुशरा बीबी ने डी चौक से रवानगी के बाद किसी से राबिता न किया। बुशरा बीबी की बहन मरियम रियाज वट्टू ने ट्वीट किया कि वो अपनी मर्जी से इस्लामाबाद से गई ही नहीं। बुशरा बीबी मानसेरा में अली अमीन गंडापुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नजर नहीं आई, जिससे लगता है कि PTI क़यादत में इख्तलाफात मौजूद हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है कि साबिक़ खातून अव्वल बुशरा बीबी मेरे लिए माँ का दर्जा रखती हैं। जब सीधी फायरिंग की गई तो मुझे उनको वहां से निकालना पड़ा। एक इंटरव्यू में अली अमीन गंडापुर ने कहा कि मैं अपनी हिकमत अमली पर मुतमईन हूँ। बुशरा बीबी मेरी जिम्मेदारी और मेरी हिफाजत करना मेरा फर्ज था। मेरी गिरफ्तारी के बाद अगर बुशरा बीबी को नुकसान पहुंचता तो उसका जिम्मेदार कौन होता। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का मजीद कहना था कि हमने डी चौक का कहा था और पहुंच कर भी दिखाया। जब डी चौक पहुंचे तो हम पर फायरिंग की गई। जानी नुकसान नहीं चाहते थे, इसलिए वहां से दूर रहे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान ने कहा कि जिस भी सियासी तहरीक में तशद्दुद का अंसर आ जाए वो ख़त्म हो जाती है। PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हर जमहूरी मुल्क में लोग पुरअमन तौर पर मुतालिबात रख कर बैठ जाते हैं, फिर हुकूमत मुज़ाकरात करती है और मसाइल का हल निकल आता है। उन्होंने कहा कि ऐसा तो कहीं नहीं होता जो रात को हुआ और कोई भी सियासी जमात या कारकुन इदारों से लड़ता है, न लड़ना चाहिए। अली मोहम्मद खान ने कहा कि PTI का ऐसा कोई इरादा नहीं था और लोग पुरअमन तौर पर बैठ गए थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप कुर्सी के लिए वर्कर्स को इस्तेमाल कर रही है। पेशावर में अमन अली खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहनुमाओं की जानिब से कारकुनों को कहा जाता है कि कफन बांध कर जाना, खुद कारकुनों को गर्म मैदान में छोड़कर भाग जाते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि एहतजाज के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs और MPs को कुछ नहीं हुआ, सिर्फ वर्कर्स को निशाना बनाया गया। कारकुनों को इस्लामाबाद पंजाब की कुर्सी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। सदर MANP का कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी सूरत हाल बहुत खराब है। वफाकी हुकूमत की लाठी गोली सिर्फ वर्कर्स तक महदूद है। एक गोली लाठी का कोई लीडर निशाना नहीं बना। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ड्रामेबाजी बंद करे और सूबे के अमन अमान पर तवज्जो दे। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शोधा हैं, खैबर पख्तूनख्वा के नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने वसाइल से कारकुनों को मुआवजा दे।
जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा कि आज मुल्क के मौजूदा हालात की वजह 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन है। सूबा बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बेअमनी है। मैं पुरतशद्दुद वाक़यात की मजम्मत करता हूँ। PTI के मुजाहिरीन ने डी चौक जाने का ऐलान किया। सवाल उठाया कि इतने बंदोबस्त के बावजूद वो वहां तक कैसे पहुंचे। मजीद जानिए इस रिपोर्ट में। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि आज मुल्क के मौजूदा हालात की वजह 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन है। इदारों को इलेक्शन से दूर होना होगा, तभी आवाम को सुकून मिलेगा। लाड़काना में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि सूबा बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बेअमनी है। उनका कहना था कि इस्लामाबाद में पुरतशद्दुद वाक़यात की मजम्मत करता हूँ। PTI के मुजाहिरीन ने डी चौक जाने का ऐलान किया। इतने बंदोबस्त के बावजूद वो वहाँ तक कैसे पहुँचे। फजल रहमान ने कहा कि मुज़ाकरात और बातचीत हो तो रास्ता निकल आता है। एक फरीक कहे कि एक शख्स को जेल में रखना है और दूसरा कहे कि हमने उसे छुड़ाना है, तो नतीजा अनारकी के सिवा कुछ नहीं। सरबराह JUIFA ने कहा कि किसी पार्टी के अंदरूनी मामलात को ज़ेरे बहस नहीं लाना चाहता। आज के हालात 8 फरवरी के इलेक्शन की वजह से हैं। इदारों को इलेक्शन से दूर होना होगा, तभी आवाम को सुकून आएगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अपनी ही क़यादत के खिलाफ फट पड़े। इस्लामाबाद एहतजाज के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफजई ने कहा कि एहतजाज के दौरान लीडरशिप कहाँ थी। मरकजी लीडरशिप ने मायूस किया है। उन्होंने सवाल उठाया कि मुज़ाकरात क्यों नहीं किए गए। शौकत यूसुफजई का मजीद कहना था कि सिंजगानी पर एहतजाज की पेशकश को कबूल क्यों नहीं किया गया। बुशरा बीबी ने डी चौक जाने का फैसला किया। शौकत यूसुफजई ने कहा कि अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी मानसेरा में हैं। इस बात की तहकीकात होनी चाहिए कि एहतजाज के लिए डी चौक को ही क्यों चुना गया। उन्होंने मजीद कहा कि तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने बहुत मायूस किया। अली अमीन गंडापुर के सिवा कोई रहनुमा सामने ही नहीं आया। मुशावरत और राब्तों का फुकदान नजर आया, जबकि हिकमत अमली का फुकदान भी वाज़ेह है। और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा कि गरीब लोग मौजूद रहे और लीडरशिप भाग गई। लोग पूछते हैं कि ये इस्लामाबाद पुलिस की नाअहली थी या फिक्स मैच था। ये वफाकी हुकूमत पे भी सवालिया निशान है कि अली अमीन एक ही रास्ते से दोबारा कैसे फरार हो गए। पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए गवर्नर फैसल करीम कुंडी का कहना था कि इस वक्त हमारा सूबा जल रहा है और ये लोग इस्लामाबाद जला रहे हैं। हम ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में अपने सूबे के मसाइल वफाक के सामने रखेंगे। उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत को इस हवाले से मौसर इक़दाम करने होंगे और बताया कि जहां कहीं PTI को जलसा करना है, जलसा करने दिया जाए, लेकिन बानी PTI की रिहाई इस तरीके से नहीं होगी। IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी का कहना है कि एहतजाज और दहशतगर्दी में फर्क होता है। एहतजाज की आड़ में कोई भी दहशतगर्दी की कार्रवाई नहीं करने दी जाएगी। चीफ कमिश्नर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी का कहना था कि सोचे समझे मंसूबे के तहत दहशतगर्दी की गई। अहम मौके पर रियासत की रेड को चैलेंज किया गया। मुजाहिरीन के पास हथियार, आंसू गैस के शेल थे। ये कैसा एहतजाज है जिसमें असलहे का इस्तेमाल किया जाता है। मुजाहिरीन ने सीधे फायर किए। 27 सिक्योरिटी एहलकारों को गोलियां लगी। 39 खतरनाक हथियार जब्त किए गए हैं। मुजाहिरीन में अफगानी भी मौजूद थे जिनको पकड़ लिया गया। मुजाहिरीन ने सेफ सिटी कैमरों को भी नुकसान पहुंचाया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि किसी पुलिस वाले के पास गन नहीं थी। प्रोपेगेंडा किया गया कि 33 लाशें एक अस्पताल में हैं। उन्हें अपनी शर्मिंदगी छुपाने का कोई तरीका नहीं मिल रहा। 31 दिसंबर के बाद अफगान शहरी बगैर NOC इस्लामाबाद में नहीं रह सकेंगे। मज़ीद जानिए इस रिपोर्ट में। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है 31 दिसंबर के बाद अफगान शहरी बगैर NOC इस्लामाबाद में नहीं रह सकेंगे। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मोहसिन नकवी ने कहा कि अगर किसी अफगान शहरी को इस्लामाबाद में रहना है तो DC ऑफिस से NOC लेना होगा। उन्होंने कहा कि एक ही तरजीह है कि जिंदगी मामूल पर आ जाए। जो थोड़ी बहुत चीजें रह गई वो शाम तक रूटीन पर आ जाएंगी। वजीर दाखिला का कहना था कि किसी पुलिस वाले के पास गन नहीं थी। प्रोपेगेंडा किया गया कि 33 लाशें एक अस्पताल में हैं। इन्हें अपनी शर्मिंदगी छुपाने का कोई तरीका नहीं मिल रहा। गुज़श्ता रोज वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि तहरीक इंसाफ के एहतजाज में अफगान शहरी भी शामिल हैं, जबकि पंजाब हुकूमत ने भी एहतजाज में शरीक अफगान शहरियों की शनाख्त सामने लाने का ऐलान किया है।
یہاں آپ کو بتائیں کہ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کا کہنا ہے کہ تاریخ میں کوئی انقلاب اتنی جلدی نہیں بھاگا جتنی جلدی کل بھاگا ہے۔ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ 9 مئی ہو یا 24 نومبر ان کا احتجاج ناکام ہی ہوا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف 5 بار احتجاج کی کال دے چکی ہے، ہر بار ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ اسما بخاری کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج میں پنجاب سے عوام نہیں نکلے۔ بشرا بی بی گزشتہ رات احتجاج سے فرار ہوئیں۔ کل وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کو کارکنوں کی تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ علی امین گنڈاپور کو ڈنڈے اور گالیاں بھی پڑیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ علی امین گنڈاپور کی گاڑی کو کل کارکنوں نے آگ لگائی۔ کہا جاتا رہا کہ بشرا بی بی کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، وہ کل میاں کی رہائی کے لیے بضد تھیں۔ احتجاج کے دوران پنجاب پولیس کی 22 گاڑیوں کو نقصان بھی پہنچایا گیا۔ احتجاج میں پکڑے گئے افغان شہریوں کا ریکارڈ جلد سامنے آ جائے گا۔ ان کے اپنے بچے باہر ہیں اور احتجاج میں لوگوں کے بچوں کو کھانا تک میسر نہیں تھا۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے کہا کہ الحمدللہ 9 مئی 2 کے پلان کو ناکام بنا دیا گیا۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ ڈی چوک سے رینجز اور پولیس کی لاشیں لینے آئے تھے۔ 2014 میں بھی ڈی چوک قبریں کھودنے آئے تھے اور 2024 میں رینجز اور پولیس کو شہید کر کے بھاگ گئے۔ پولیس اور رینجز کی شہادتوں کی ذمہ دار بانی پی ٹی آئی، بشرا بی بی اور گنڈاپور ہیں۔ سر پہ جو کفن باندھنے آنے کا نعرہ لگا کر آئے، پولیس اور رینجز کو شہید کر کے بھاگ گئے۔ کوئی پاکستانی ایسا نہیں کر سکتا۔ سینئر صوبائی وزیر نے مزید کہا کہ کرائے کے دہشت گرد اسلحہ لا کر ملک کو آگ لگا کر بلٹ پروف گاڑی میں بھاگ گئے۔ جو 3 دن عوام نے دہشت گردی دیکھی وہ ہے پی ٹی آئی۔ یہ پی ٹی آئی سیاسی جماعت نہیں، 100 کرمنلز کا گروہ ہے۔ یہاں آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے فتنہ اور انتشار پسندوں کا ساتھ نہ دینے پر عوام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ صوبے بھر میں راستے کھولنے کا حکم دے دیا گیا۔ مریم نواز نے اشیاء خوردنوش اور کی فراہمی برقرار رکھنے کے لیے اقدامات کی ہدایت کرتے ہوئے انتظامیہ کو اشیاء ضروریہ کے نرخ پر کنٹرول کا حکم بھی دے دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا مزید کہنا تھا کہ انتشار پسندوں کی وجہ سے رکاوٹوں پر عوام کی تکلیف کا احساس ہے۔ عوام کو پہنچانے والی تکلیف اور پریشانی پر بے حد افسوس ہے۔